ठीक है, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। सर ये जो आपने फिर दो दफा क्यों लिखा, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6? सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया था कि 10⁻⁻7 और 10⁻⁻6 डिफरेंट है ना, आपको सेम करना है। सेम कैसे होगा जी कि जब आप 10⁻⁻7 को स्प्लिट कर दो, 10⁻⁻1 अलग कर दो, तो आपके पास 10⁻⁻6 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सेम आ जाएंगे ना, तब आप कॉमन इजीली ले सकते हो। अब ये करने के लिए मुझे यहाँ पर 10⁻⁻1 अलग करना पड़ा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 इज 0.2। फिर जब मैं दोनों में से 10⁻⁻6 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0.2, और ये डिफरेंस निकालना है। 1 माइनस 0.2 इज 0.8 टाइम्स 10⁻⁻6। फिर मैंने नवाल को कहा था कि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। Standard form will be when it is represented as 8 point something into 10 की power n. So I need to shift this decimal from here to here. So मुझे एक decimal आगे जाना है. That's why I'll write 0.8 as 8 into 10 की power -1. और 10 की पावर -6 ऑलरेडी था। फिर तुमने मुझे बताया कि 10 to the power -1 into 10 की पावर -6 can be further simplified as 10 to the power -7. So now my answer is in standard form, 8.0 into 10 की power -7. Make sense? जी सर। नवाल क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 3। Whenever you are multiplying the terms in indices form, you can multiply the numbers, the integers with the integers, and the powers with the powers. So, what is 5 times 7? 35. 35 times फिर 10 की power -5 into 10 की power 3. When the bases are same and are being multiplied, so Sliman powers must be add up, right? So 35 into 10 की power -5 -8। plus 3, -5 plus 3, it's going to be -2. Now this value is not अच्छा in, -5 है। सही है, -5 plus 3 हो जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा। Now 35 into 10 to the power of -2 is not in the standard form. I want you to give me the answer in standard form. So guys, how am I supposed to change this in standard form? क्योंकि सर क्या करना है हमें? Standard form में आंसर लिखना। ठीक। मुझे बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? सर मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा, आप समझा दें। 35 into 10 to the power -2 को सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3.500 into 10 to the power -2 होगा। सही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वी डू एग्री कि इसको 3.5 के टर्म्स में लिखा हुआ होना चाहिए। सही है, द हाँ सही है डेसिमल इज मेरा। राइट हियर। हाँ एक मिनट, द डेसिमल इज हियर, यस। over here, it should be here. So I want to express 35 as 3.5. So 35 can be expressed as 3.5 by 3.5 into 10 की power 1. सही है, ये जो चीज है ना, सिर्फ इसको मैं ये लिख सकता हूँ। So 35 can be expressed as 3.5 into 10 की power 1. So it will give you 35. नवाल ये क्लियर है? जी सर। और फिर 10 to the power -2 ऊपर था। Now this is 3.5. When you're going to multiply these two terms out, 10 to the power 1 into 10 की power -2, powers are going to be added up. So 1 minus 2 is going to give you -1. 3.5 into 10 की power -1. That's the standard form. सुलेमान, यही आंसर था आपका? जी।
ठीक है, अब इसी तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन में चेक, डिवीजन में चेक कर लो। 0.3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, we need to solve this. Up, whenever we are dividing the terms that have usually the indices, that are usually in the indices form, the number on the numerator and the number in the denominator can be simplified, okay, and the powers can be simplified. तो सबसे पहले 0.33 को 0.15 से डिवाइड करना। अब since we don't have the calculator, what we are going to do is we are going to simplify this. 0.33 divided by 0.15. The easiest approach is going to be that if you remove this decimal from the denominator, आप 0 numerator में लगाओगे और ये decimal हटाओगे, so again you are going to write 2 zeros in the denominator. So the fraction gets now to 3300 divided by 1500. Now you guys know that 0 cancel हो जाएगा, so the fraction is simply 33 over 15, which can be further simplified as 3 times 11, 3 times 5. So 0.33 divided by 0.15 in fraction form is 11 over 5. So I can write 11 over 5 इसकी जगह, ठीक है? Yes or no? Yes. Then for the powers, there is 10 to the power of -3 in the numerator and 10 to the power 2 in the denominator. When bases are same and are being divided, the powers are going to be subtracted. सही है, ये बात याद रखना. So powers are going to be subtracted. So -3 में से you are going to subtract the power in the denominator, that was 2. So -3 minus 2. So 11 upon 5 times 10 की power -5 हो जाएगा. But we need to represent 11 over 5 as a decimal value, क्योंकि standard form में decimal values होती हैं. ठीक है? So what is 11 over 5 in decimal? 2.2. 2.2. So 2.2 into 10 to the power of -5. अब मुझे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं. This answer is in standard form. Okay guys. तो बस ये इतनी सी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म की. I'll give you more questions on it. तो आप वो करते रहना. लेकिन पिछला मेरा होमवर्क कंप्लीट करो so that I can give you more practice question. सर वो असल में स्कूल का भी होमवर्क का ज्यादा है और वो फिर अकाउंट्स के सर एक हफ्ते से क्लास नहीं ली थी ना, तो उसमें कोई होमवर्क बात नहीं, ज्यादा मैं दिया है. प्रेशराइज नहीं कर रहा, बट कोशिश करो जितना कर सको कर लो. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फिर नेक्स्ट क्लासेस, कमिंग क्लासेस में फिर मेरे से हाँ हाँ डिस्कस कर लो ना. साथ जी साथ जी लेके चलेंगे ना तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए. ओके, ठीक है. now if we are done with this, I am going to start with the laws of indices. जल्दी से I'm going to give you a quick brief review on laws of indices. If you guys know this, well and good. नहीं पता तो पूछ लेना मुझे. ठीक है, इंडेक्स फॉर्म क्या होती है बेसिकली कि if a raised to the power of m है, where m can be any positive number, ठीक है, या m can be any number. So इसका मतलब है कि a times a times a times it is going till m factors. यानी कि अगर a की पावर 5 होता तो this number is going to be a times a times a times a times a. ओके, सारी पावर्स 1 है a की and basis same है. if you are going to add the power, this is going to be a to the power of 5. बट a to the power of -5 होता, ठीक है, इसका मतलब है this is same as saying 1 upon a to the power of 5. if you have a negative index, that indicates division. so a to the power of -5 is same as 1 upon a to the power of 5. और फिर a to the power of 5 को हम उसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं a times a times a. ठीक है, the next thing is कि a to the power of 0 is always going to be 1. So any number to the power of 0 is always 1. Okay, and any number
to the power of 1 is the number itself. तो 10 की पावर 1 10 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है. सही है. अब कुछ रूल्स देखते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस. Number 1, whenever you have two bases, two same bases but with different powers being multiplied, the result is going to be the sum of the powers. ठीक है. For example, 10 की power -5 times 10 की power 4. So the powers are going to be added up. 10 की power -1 आ जाएगा. If you have the same bases but are being divided up, the powers are going to be subtracted. जो चीज समझ में नहीं है मुझे उसी वक्त स्टॉप कर देना. ठीक है. If you have same base, you're going to follow this. Then if you have different bases but to the same power and are being multiplied, then what will happen is the bases are going to be compiled and multiplied and raised to the common power n. सही है. सेम, इसमें सेम इंडेक्स है but different bases हैं. The next example also says the same. If you have two different bases but same power and are being divided, so you can write this as a upon b to the complete power n. इसमें you have different bases but same index. Same index कह लो या power कह लो. ये चीजें पता है ना आप लोगों को. मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा. मुझे बता दो अगर इसमें कोई लॉ समझ में नहीं आता तो. नहीं सर समझ आ रहा है. सुलेमान आप भी बता दीजिए. Now a raised to the power of m to the power of n, यानी कि एक नंबर है that is raised to some power m और फिर वो complete power is raised to the power of n. So ऐसे cases की simplification is just going to be the multiplication of the two powers. So this result is going to be a to the power of mn. mn कह लो या nm कह लो, बात एक ही है. I can also write this as a to the power of n to the power of m. Guys, this thing is same as this thing. The powers just get multiplied. So if I have a raised to the power of m, which is raised to the power of n, I can also write this as a to the power of n, which is raised to the power of m. It's going to give me the same answer. सर ये फिफ्थ वाला वापस समझा दें. For example, 2 की power 3, ठीक है, का square. Now this is same as 2 की power 6. 3 times 2 6. I can also write this as 2 की power 2 का cube. 2 की power 3 क्या होता है सुलेमान? जी. What is 2 raised to the power of 3? 8 8 square is 4 8 square 8 square 16 64 64 सॉरी. ठीक है. कैलकुलेटर में 2 की पावर 6 डालोगे तब भी 64 आएगा. अच्छा 2 जी. स्क्वायर इज 4 राइट. 4 की जी. पावर 3 डालोगे तब भी कैलकुलेटर में 64 आएगा. 64 आएगा. So I can rewrite this number as well. Then if you have fractional power a raised to the power of 1 upon n, where the index is a fraction, then this indicates the root form. So a to the power of 1 upon n is same as saying nth root of a. For example, अगर मेरे पास a to the power of 1 upon 2 है तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ a होता है. अगर मेरे पास a की पावर 1 upon 3 है तो ये क्यूब रूट ऑफ a होगा. इसी तरीके से a की पावर 1 upon 4 है तो ये फोर्थ रूट ऑफ a होगा. तो ये नंबर if a is raised to the power of 1 upon n, this is going to be the nth root of that number. सही है. एक और एग्जांपल अब नंबर से ले लो. ठीक है. 64 की पावर हाफ. तो 64 की पावर हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 64. तो सुलेमान, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64? 8 8 right. So
ये रूल है उसका। नाउ इफ यू गेट दिस फ्रैक्शनल पावर, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इफ a is raised to the power of m upon n, so if a is raised to the power of m upon n, what I can do is I can write this as a to the power of 1 upon n to the power of m, क्योंकि पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगी, है ना। a to the power of m upon n is same as a to the power of 1 upon n की पावर m। या फिर मैं इसको रीअरेंज करके मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a की पावर m की पावर 1 अपॉन n, और पावर जो फ्रैक्शनल पावर होगी 1 अपॉन n वो nth रूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 अपॉन 2, सही है? तो 2 की पावर 3 अपॉन 2 को मैं 2 की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 2 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब लिख सकता हूँ। और 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो ये जो भी आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का, वो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 2 के इक्वल है। समझ में आई बात? जी। ठीक, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। So given that x is equal to 6 into 10 to the power of 5, find the value of each of the following. Giving your answers in standard form. So A 5x, B 3x squared, C 3 upon x, and D 43 4,32,000 over x cube. ओके। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड पे जो जो मैंने करवाया वो आप लोगों ने कॉपी कर लिया? यस और नो? नहीं सर, कॉपी नहीं किया, आप फिर से पीछे कर देंगे तो हम स्क्रीनशॉट्स लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वाज स्लाइड नंबर 1। ठीक है, दोनों ने कर लिया? सुलेमान? जी। जी। स्लाइड नंबर 2। कर लिया। स्लाइड नंबर 3। कर लिया। Okay. Now this is slide number 4. I want you to copy down the question. ठीक है, मेरे साथ साथ भी करते रहो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। कर लिया कॉपी। कर लिया? ओके। Now 5 multiplied by x. So 5 multiplied by x would mean, yeah, you have to multiply 5 by 6 into 10 to the power 5. और फिर फाइनल आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। चलो करो। फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड एक्स इज 6 into 10 to the power of 5। तो नंबर्स पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 times 6 is
30. 30 into 10 to the power 5. Now this answer is not in standard form. What is the answer in standard form? What is the answer in standard form, guys? So सर 3.0 जीरो into 10 to the power minus 1 कर देंगे 3.0 into 10 की power 1 जीरो कर पॉइंट देंगे जीरो जीरो ऐसा आ रहा है तो 3.0 लिख सकते हैं. फाइनल आंसर क्या होगा? 3.0 into 10 to the power 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 30 को ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे 3.0 into 10 की पावर 1 लिखना पड़ेगा, एंड देन 3 फिर 10 to the power 5 तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो 3.0 powers are going to be added up 10 to the power of 6. ये आंसर होगा. नेक्स्ट मूव ऑन करें. 3x square. 3x square का मतलब है 3 being multiplied by x square, which is 6 into 10 to the power of 5 plus square. Now over here, this number 6 is going to be squared and this number 10 to the power 5 is going to be squared. ठीक है? So this is how you should do. 6 square हो जाएगा. अच्छा, अब मुझे ये सोच के बताना, 10 की पावर 5 है और फिर स्क्वायर है. ये जो रूल है ना, उसको देखकर बताओ 10 की पावर 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा? हाउ इज दिस गोइंग टू बी सिंप्लीफाइड? क्या लिखना चाहिए फिर मुझे? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पावर्स 5 आर और ये गोइंग 10 10 और 5 और 2 10 to the power 2 10. 10 10 की पावर 10. सही है. आई नो दैट दिस 6 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 36. 10 की पावर 10. 3 times 36 is 108 into 10 की पावर 10. अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. वन पॉइंट जीरो एट इंटू 10 to the power 12 यस, ठीक है. अब पार्ट सी ट्राई करो. Yeah, any luck? So 3 divided by 6 into 10 to the power 5. First of all, we are going to get rid of the number. So 3 upon 6 is 1 upon 2. And 1 upon 2 can be written as 0.5. And when this 10 to the power 5 is going to go in the numerator, I should be writing 10 to the power of minus 5. यहाँ तक सब एग्री करते हैं? जी सर, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना? ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए. 0. अच्छा हाँ, जीरो नहीं, जीरो है पहला. It should be 5 point something. So 5.0 into 10 की पावर क्या होगा?
पावर क्या हो जाएगी? -6 हो जाएगी। -6 हो जाएगी। गुड। ओके, पार्ट डी पे चलें। हाँ सुलेमान, आर यू विद अस? पार्ट डी पे चलें। जी सर। ओके, पार्ट डी में एक्स क्यूब है डिनोमिनेटर में, सो 6 इंटू 10⁵ का क्यूब हो जाना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। सिक्स क्यूब कितना होता है? 36 टाइम्स 6, 216 इंटू, अब पावर्स आर यहाँ पे 10⁵ की का क्यूब, द पावर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी सुलेमान? 6 का तो क्यूब मैंने 216 कर लिया, 10⁵ का क्यूब जी। क्या होगा? 10⁵ 100। 10⁵ का क्यूब, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁵ का क्यूब। इसको किस रूल से सिंप्लीफाई करोगे? पावर्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, तो 15 हो जाएगा। हाँ ये रूल याद रखो। सही है। अब न्यूमरेटर में जो सही। नंबर है वो जी। इंडेक्स फॉर्म में नहीं है, बट मैं लिख सकता हूँ ना, मैं हम्म। 432,000 को 432 इंटू 10⁵ तो लिख सकता हूँ, और 216 इंटू 10⁵15। सही है। जी। अच्छा, 432 और 216 क्या है? आपस में डबल है। 216 को जब तुम डबल करोगे तुम्हें 432 मिलेगा। जी यस। सो 2 मिलेगा। इंटू 10⁵3 डिवाइडेड बाई 10⁵15। अब वही रूल्स ऑफ इंडाइसेस, powers bases are same, powers are different and are being divided, so the powers are going to be subtracted. 10⁵3 minus 15, so 2.0 into 10⁻³ minus 15 कितना हो जाएगा? -12। Let me know if you guys have any question in this. सर ये लास्ट क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कहाँ से पूरा। क्लियर नहीं हुआ? पहले तो मतलब फोर क्लियर हंड्रेड थर्टी टू बीच बीच। थाउजेंड हाँ वो यहाँ तो सही यहाँ तो समझ आ गया कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है। फिर मैंने 432 और 216 को सिंप्लीफाई कर दिया। 216 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 6 टाइम्स 1, 216 टाइम्स 2। बाकी के साथ 3 जीरो कहाँ चले गए इसके 432 के साथ जो थे वो कहाँ तो वो क्यों हटेंगे? मैंने 432 को 432 इंटू 10⁵3 लिख दिया, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सही है। जी। आगे समझ में आ रहा है? सही डिवाइड होंगी तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर्स bases same and are being divided, so the powers are going to be subtracted. ठीक है। जी। जी। ओके।
ठीक है, मुझे इवैल्यूएट करना है, नंबर्स गिवन है मुझे, टू द उनकी पावर्स गिवन है, आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस एंड इवैल्यूएट द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट। पहला जो है दैट इज माइनस टाइम्स -1/27 की पावर -2/3। तो 27 को सबसे पहले 27 इज अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब। सो द फर्स्ट स्टेप दैट शुड कम टू योर माइंड इज कि मैं 27 को 3 की पावर में लिख लूं, दैट इज 3 क्यूब। सही है। इसके बाद you're going to this was 1/3 की पावर -3 ना, ठीक है। अब what you can do is माइनस यहाँ पे लिखा 3 की, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो what will happen, 3 की पावर -3 की पावर -3, सही है, एंड रेज टू द पावर ऑफ -2/3। ये बात समझ सर में आ रही? ये वापस समझा दे सर, मैं कॉपी कर रहा था ये क्वेश्चन। 3 क्यूब डिनोमिनेटर में है ना, so if I want to take this in numerator it is going to be 3 की पावर -3। ठीक है सही, तो minus sign as it is, this number 3 cube in the denominator goes into the numerator, so you are going to express this as 3 to the power of -3, then -2/3 as it is, ठीक है। Now you are going to multiply the powers out, so this is what happens when you multiply the powers out. So what is -3 times -2/3? Minus minus is plus, 3 cancel. Would you agree that the power comes out to be 2? Yes. So when the power is 2, -3 का square is going to be, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आंसर आ जाएगा? 9 -9 या +9? अभी तो 9 आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अभी तो +9 आएगा क्योंकि स्क्वायर है। Then the outside minus sign will make this -9, ठीक है? So that's your answer. अगला पार्ट ट्राई करो। सुलेमान सेकंड पार्ट आ गया? जी सर, देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर। ये क्या 27 a⁴ क्या लिखा है आपने? 9 है? ये 27 a⁴ है। This value is 9, a⁴ (9). ठीक है सर। सर आपने ऊपर वाली वैल्यू में पावर -3 है, तो अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगर माइनस लगा हुआ है तो 1/8 नहीं हो जाएगा? एक मतलब वापस से बोलो क्या करिए? सर पार्ट 2 में आपने मतलब पावर जो लगाई है वो -3 है, जी, तो अगर हम 2 का क्यूब निकालते तो 8 आता है और इसके अंदर -3 है, तो ये 1/8 नहीं होगा?
क्योंकि माइनस 2 की की पावर साइन। -3 का मतलब है 2 की पावर -3 का मतलब है 1/2 की पावर +3 और ये 1/8 होगा। अच्छा ठीक है। सर ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा। मैं कर देता हूँ, पहले सुलेमान भी थोड़ा ट्राई कर ले, मैं करवा देता हूँ। सुलेमान कहाँ तक ट्राई किया? सर हो रहा है, मुश्किल है, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा ही कर रहा हूँ। सही तो नहीं ओके लग रहा है, देखो, मेरा आंसर कुछ अलग अलग 2 ही की आ रहा पावर है। -3, सबसे पहले ना हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 की पावर -3, a की पावर -3, b की पावर -6। ये बात में कोई प्रॉब्लम? हाँ, नहीं। यहाँ तक सही है। जी यहाँ टाइम्स, तक सही है। अच्छा 4 की पावर हाफ, तो मैं कोशिश करूंगा 4 को है ना 2 की पावर में लिख दूं। तो 4 जो होता है वो क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है। क्योंकि मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, आई नीड टू ब्रिंग एवरीथिंग इन टूज एंड थ्रीज। तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिखता हूँ और 2 स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसका क्या आंसर होगा? 2 स्क्वायर की पावर हाफ क्या हो गया? 2 2 कैंसिल, क्योंकि 2 टाइम्स हाफ इज 1, सो 2 की पावर 1 आ जाएगा। और हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट भी तो 2 ही होता है, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 2। फिर ए की पावर क्या हो जाएगी? 2 की 2 टाइम्स 1/2। तो जल्दी से मुझे बताओ, ये पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा आंसर? 2 टाइम्स हाफ इज ए स्क्वायर की पावर हाफ। क्या सर होगा 1 गाइस? ही होगी ना। 1 होगा। ठीक है, 1 ही हाँ। होगा। हाँ, अब आ जाओ b⁴ की पावर 1/2, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 4 टाइम्स हाफ इज 4 2। टाइम्स हाफ इज 2 डिवाइडेड बाय 27 की पावर। अब 27 को आई नो इट्स अ परफेक्ट क्यूब, तो मैं 3 की पावर में लिख देता हूँ। 3 क्यूब है, ठीक है। और 3 क्यूब की पावर -2/3।
सो 3 क्यूब जब -2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा नवाज? यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर लेते। 3 क्यूब है मेरे पास की पावर -2/3, तो क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 2 स्क्वायर। 3 to the इसके power बाद 3। सही है, इसके बाद सुलेमान a की पावर 9 है यहाँ पे और यहाँ पे है -2/3, तो a की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय -2/3, तो इन दोनों पावर्स को जरा मल्टीप्लाई करके बताओ सुलेमान क्या आएगा? 9 टाइम्स -2/3 कितना होता है? सही है, ये भी इस तरह होगा ना, 3 मतलब 3 और 3 3 से 9, तो a टू द पावर यस, -6। a टू द पावर ऑफ -6। इसके बाद b क्यूब की पावर -2/3, b क्यूब की पावर -2/3, वही सिंप्लीफिकेशन कर दो, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, b की पावर -2। -2। ओके, अब देखते हैं अब किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 2 की पावर -3, 2 की पावर 1, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? ये न्यूमरेटर में 1 और upon मल्टीप्लाई हो 8। रहे हैं। 2 की पावर, इन दोनों को 1 upon मल्टीप्लाई 8 कर हो दो ना, जाएगा। 1/8 में कन्वर्ट नहीं करो। सुनो, 1/8 में कन्वर्ट नहीं करें आप। 2 की पावर -3 being multiplied by 2 की पावर 1, so what is going to be the end result? बेसिस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना? जी। तो पावर ऐड करके क्या आ जाएगा आंसर? 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 into the power 2 हो जाएगा ना। 2 की पावर -2 हो जाएगा। सही है, अब आते हैं। सर ये वापसी पार्ट एक्सप्लेन कर दे। हाँ मैं बताता हूँ, देखो न्यूमरेटर को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 की पावर -3 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर जी। -3 टाइम्स 2 की पावर 1 जब मैं सॉल्व करूंगा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगे, तो -3 + 1 -2। -2, तो 2 की पावर -2 हो जाएगा पहला टर्म। तो मैंने 2 को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू जी, सिंप्लीफाई a-3 एंड a टू द पावर ऑफ 1। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये -2। a की पावर -2, b की पावर b के -6 और -2 तो -4। नहीं, -6 और नहीं, +2, -6 + 2 -4 हो है। जाएगा। हाँ तो -4। ठीक है, अब 3 की पावर 2 एज इट इज, क्योंकि उसको और कोई डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है सॉल्व करने के लिए। a टू द पावर ऑफ -6 एज इट इज, b टू द पावर -2 एज इट इज। अब देखो, सबसे पहले नंबर्स को डील कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को किस तरीके से आप करेंगे? बताओ। सो 2 की पावर -2 कैन बी रिटन एज 1/2 स्क्वायर। ठीक है, मैं पावर सिर्फ पॉजिटिव कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर भी है। न्यूमरेटर में क्या था मेरे पास, a टू द पावर ऑफ -2, डिनोमिनेटर में a टू द पावर -6। व्हेन बेसिस आर सेम एंड आर बीइंग डिवाइडेड, पावर्स को क्या होता है? पावर्स आर ऐड ऐड हो जाते हैं। ऐड। ऐड नहीं होते, सब्ट्रैक्ट होते हैं। डिवाइड हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे द पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। सो a टू द पावर ऑफ -2 माइनस नीचे वाले की पावर दैट इज -6। इसी तरीके से b की पावर -4 माइनस नीचे वाली पावर दैट इज -2। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट? यस। ओके, so a की पावर -2 + 6 is going to give you +4, b to the power -4 + 2 is going to give you -2, 2 square is 4, 3 square is 9,
So I can also write this answer as a to the power 4. b की पावर -2 की वजह से मैं b को नीचे ले जाऊंगा, b स्क्वायर कर दूंगा, 9 times 4 is 36. सही है गाइस? जी सर। अच्छा, एक हमने छोटी सी गलती की। वो गलती ये है कि when converting 27 this should have been 3 की पावर +3. सही है, मैं इसको बताता हूँ। 3 की पावर +3 की पावर -2 अपॉन 3 कैंसिल होके 3 की पावर -2 आएगा। सो 3 की पावर, गाइज यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर लो, दिस इज 3 की पावर -2, ठीक है। 3 की पावर -2 होने की वजह से what will happen is this number is going to go in the numerator. ये बात समझ में आ रही? 3 की पावर -2 है ना, so this number is going to go in the numerator as 3 square, और 3 square कितना होता है? 9. So the answer is going to come out as 9 upon 4, 9a to the power 4 divided by 4 times b square. Okay, ये छोटा सा करेक्शन कर लो यहाँ पे। सर ये 3 -2 और फिर कहाँ गया ये? कौन सी चीज? 3 to the power -2 स्क्वायर जो आपने अभी बोला गलती हुई है, कहाँ गया है ये? सो बेसिकली 3 की पावर -2 था ना, 3 की पावर -2 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके 3 स्क्वायर हो जाएगा। 2 की पावर -2 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाके द पावर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक, सही है। एक मिनट, स्क्रीन जरा हैंग हो गई। सही है गाइस? ओके, पार्ट 3 आप लोग कॉपी कर लो, ये आप लोग ट्राई करोगे। मुझे जल्दी से एक और चीज बतानी है। लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन कॉपिंग द थर्ड पार्ट। कॉपी कर लो, इसको खुद सॉल्व कर लेना सिंपलीफाई करके, ठीक है? कॉपी कर लिया है। नवाल आपने भी कर लिया? जी सर। ओके, प्लीज अब जल्दी से ये कॉपी कर लो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सिर्फ समझा देता हूँ बिफोर द क्लास एंड्स। तो सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग सेम बेस या सर सेम ये फिर इंडेक्स। आप कल ही करा दे तो एक साथ सही समझ आ जाएगा, अभी जल्दी जल्दी में फिर ये भी अभी नहीं, मुश्किल आई है हैव थोड़ा। 10 मिनट्स, आई हैव 10 मिनट्स, तो मैं 10 मिनट्स में करवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, नहीं समझ में आएगा मैं कल दोबारा रिपीट करवा दूंगा। अब मेरी बात ठीक सुनो, है सर। इफ यू हैव एन इक्वेशन जिसमें that deals with index but the bases are same and the index is different, so for example a to the power of m is equals to a to the power of n, the value on the left can only be equal to the value on the right if the powers are also same. okay, अगर मुझे पता है कि bases same है और equals to के साथ लिखे हुए हैं, यानी कि the number on the left is equal to the number on the right, bases भी same है, then the only possibility when the number on the left and the right can be equal is when the powers are also equal. सही है? So if you come up with an equation a to the power of m equals to a to the power of n, then that's only possible when m is equal to n. ठीक है, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स भी सेम होगी, या वाइस वर्सा आप ये कह सकते हो कि अगर बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, ठीक है, और इक्वल्स टू के साथ लिखे हुए हैं, सही है, लेकिन पावर्स इंडेक्स सेम है, यानी कि पावर सेम है, बट बेसिस डिफरेंट है और नंबर ऑन द राइट एंड द नंबर ऑन द लेफ्ट आर सेम, दैट्स ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल्स टू b, यानी कि बेसिस सेम होंगे तभी ये पॉसिबल है। अब मैं इसकी एग्जांपल करवाता हूँ। जैसा बेसिस सेम होगी तो क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा? बेसिस सेम है, ठीक है, तो और जी, इंडेक्स डिफरेंट है तो वो
पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अगर बेसिस सेम है और इंडेक्स डिफरेंट है बट ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये तो जब भी हो सकता है जी जब पावर्स भी इक्वल होंगी, जी सही है। और वाइस वर्सा, अगर इंडेक्स सेम है बट बेसिस डिफरेंट है लेकिन वैल्यू ऑन द राइट एंड वैल्यू ऑन द लेफ्ट आर सेम, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द बेसिस आर आल्सो सेम, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 2 टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1250 की पावर n। अब ये वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? 2 की पावर n, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरे पास है नंबर ऑन द लेफ्ट और नंबर ऑन द राइट क्या, 1250 की पावर n। तो मुझे 1250 को 2s एंड 5s में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अगर तुम 1250 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो ना, so what you are going to get is ठीक है, so 5 times 625 डिवाइड बाय 5 करो कितना आता है, 5 times 125, 5 times 25, 5 times 5 and 5 times 1। so इसका मतलब है कि 1250 can be written as 2 into 5 to the power of 4, 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5। so 1250 का जो नंबर है I can replace it with 2 times 5 की power 4, and this number 1250 was raised to the power of n, so this is raised to the power of n। now it's an equation involving indices which says that the number on the left is equal to the number on the right, सही है। so अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, दैट इज गोइंग टू गिव मी 2 टू द पावर ऑफ n टाइम्स 5 की पावर -2, क्योंकि दिस नंबर अगर मैं सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर में लिखूंगा, सो डिनोमिनेटर में इट वाज 5 स्क्वायर, न्यूमरेटर में इट विल बी 5 टू द पावर ऑफ -2। so this number on the left can be expressed in this form। now what do you think the number on the right can be simplified to? what is 2 की पावर n? 2n ही होगा। 2 की पावर n। and what is 5 की पावर 4n? 5 to the power 4n। 5 to the power of 4n। now if the numbers on the left and the number on the right are equal, और basis देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, this is the number on the right and the number on the left can only be possible when 2 की power n वाला number is equal to 2 की power n on the left hand side and as well as on the right hand side। इसी तरीके से 5 की पावर -2, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 5 का कौन सा फैक्टर है, 5 की पावर -2, और राइट साइड पे 5 की पावर 4n, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे तभी ये दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। सो 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4n, ऐसा है या नहीं? वुड यू एग्री विद दिस? जी। सुलेमान, ये दोनों नंबर्स लेफ्ट और राइट पे जब भी इक्वल हो सकते हैं जब 2 वाले टर्म्स एक जैसे हों और 5 वाले टर्म्स एक जैसे हों, राइट? जी अब अगर 5 देखो 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4n, तो जब बेसिस सेम है तो पावर्स मस्ट आल्सो बी सेम, सेम so therefore -2 must be equal to 4n। so from here you can find the value of n, that is going to be -2 upon 4, which is -1 upon 2। is this making sense? यस ओके, पार्ट बी चेक करो, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछो, नहीं कोई सर, क्वेश्चन समझ आ नहीं? गया। ओके, पार्ट बी में 1/2 की पावर r, तो 1/2 पार्ट बी गाइस ये वाला, ठीक है। 1/2 की कंबाइंड पावर r का मतलब है 1 की पावर r एंड 2 की पावर r, फिर देयर इज अ डिवाइड साइन, डिवाइडेड बाय 4 देन इक्वल टू 1/8, सही है। अब मैं सबको 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 क्यूब।
1 अच्छा 1 की पावर r is always going to be 1. 1 की पावर anything is always 1. ठीक है, तो 1 की पावर r I left it out as 1. 2 की पावर r. अब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर लिख सकते हो, रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड के साइन के बाद. आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस. और हाँ राइट वो साइड पे, यस चेंज हो जाता है, हाँ न्यूमरेटर राइट साइड पे, डिनोमिनेटर बन जाता है। यस राइट साइड पे यू आर गोइंग टू गेट 1/2 क्यूब. अब पहले लेफ्ट साइड को फुली सिंप्लीफाई कर लो. 1 times 1 is 1. What is 2 की पावर r into 2 की पावर 2? बेसिस सेम है, डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? 4 नहीं, माइनस होगा ना, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. 2r, 2 r। एक की पावर r है, एक की पावर 2 है, तो ऐड कर दो ना, r+2. अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए अगर डिवीजन होता तो हाँ, r डिनोमिनेटर माइनस में टू हो जाता। मल्टीप्लाई हो रहा है. यस, इक्वल्स टू 1/2 क्यूब. ठीक है, सही है यहाँ तक. जी अब चेक करो, द ओनली वे द लेफ्ट हैंड साइड कुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड व्हेन दिस 2 to the power of r+2 is equal to 2 की पावर 3. क्योंकि ये भी 1 है लेफ्ट पे, ये भी राइट पे भी 1/2 की पावर है, तो ये तो जब ही इक्वल हो सकते हैं दोनों फ्रैक्शन जब 2 की पावर r+2 is equal to 2 की पावर 3. और ये जब इक्वल हो सकते हैं जब पावर r+2 r is equal to 3. सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 3 - 2 1. सही है यहाँ तक. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यहाँ तक. कोई ऐसी चीज जो मैं वापस समझा दूं. नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, मेरी भी दूसरी क्लास है, लेकिन मुझे ये चीज़ कंप्लीट करवानी है. हो सके तो यार नेक्स्ट क्लास में सब टाइम पर आ जाना. ठीक है. पार्ट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if p to the power of -5 divided by 27 to the power of 3 is equals to 3 की power -14. So what I'm going to do is I'm going to change the numbers in 3 की powers. पहला digit is p की power -5. I can't do much about it. But अगला number है divided by 27 की power 3. So I can write it as multiply by 1/27 की power 3. ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने. is equals to 3 की power -14. Now you should remember that 27 is a perfect cube, so you can write 3 cube instead of 27. और फिर बाहर भी power 3 है. Now 3 times 3 is going to give you 9. 1/3, 3 times 3 is 9. ठीक हो गया. Now p to the power of -5 into 3 की पावर, अगर 1/3 की पावर 9 लिखा हुआ है तो this can be written as 3 की पावर -9 in the numerator. सही है, equals to 3 की पावर -14. सही है. अब इसको सॉल्व करने मुझे p की वैल्यू निकालनी है. So what I'm going to do is I can divide this number on the other side. So p की पावर -5 is going to be equal to 3 की पावर -14 divided by 3 की पावर -9. सही है. तो p की पावर -5, if the basis right hand side कौन सॉल्व करके देगा मुझे? 3 की पावर -14 न्यूमरेटर में, 3 की पावर -9 is in the denominator. So when you are going to solve this, basis same है, powers are और divide हो रहे हैं तो तो powers are 3 to going the to be power of 5 3 to the power सब्ट्रैक्ट हो of जाएंगे, -5. ठीक है. -5 अच्छा, जी। अब मुझे ये देख के बताओ, there is only one number on the left and there is only one number on the right, और वो दोनों numbers equal हैं, उनकी powers equal हैं. तो what does this tell you about the base? Base must also be सेम। same. That's why p की value is going to be 3. ठीक है, please have a screenshot of this और फिर copy कर लेना. ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है, I'll see you in the next class tomorrow.
सर अल्लाह हाफिज जी। ये वैसे सीडर में अकाउंट्स कौन पढ़ा रहा है क्लिफ्टन वाली ब्रांच में? क्लिफ्टन वाली ब्रांच में यार फेसबुक पेज चेक कर लो, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना। सर अली जमशेद हैं, सर उमैर हैं, ठीक है। और कौन है, सर एमएस आया भी अभी हैं शायद। देख लो एक मतलब फेसबुक पेज पे देख लो, जी ठीक है। बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज।